उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जा रहा है। सबसे पहले वहां पर चलते हैं, फिर रिपोर्ट दिखाएंगे। 62 first floor of Parliament House, New Delhi, closed at 5 p.m. Out of the 785 electors comprising the elected and nominated members of Rajya Sabha and Lok Sabha, 771 electors cast their votes before closure of the poll, that is 5 p.m. The total elector turnout was accordingly 98.2%. Only one ballot box was used for the poll, which was sealed up immediately after the close of poll at 5 p.m. in the presence of the authorized representatives of the contesting candidates and election observers. The counting of votes commenced at 6 p.m. The ballot box was opened in the presence of the candidate, Sri Gopala Krishna, authorized representatives of the contesting candidates, election observers, and counting officers whom I had appointed to assist me in the counting of votes. The ballot papers taken out were first scrutinized. The valid and invalid ballot papers were segregated, and the valid ballot papers were distributed according to the first preference votes secured by each candidate. 771 votes were polled, out of which 760 were valid and 11 were invalid. The quota sufficient to get a candidate elected was determined by dividing the total number of the first preference votes secured by both candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The said quota was 381. As all of you are aware, the value of votes for the presidential election is 1. Sri Venkaiah Naidu M has secured 516 votes as first preference votes, and Sri Gopala Krishna 244 votes. As the first preference votes secured by Sri Venkaiah Naidu M was greater than the requisite quota, I, in my capacity as returning officer, declare Sri Venkaiah Naidu M duly elected to the office of the Vice President of India. Overall, the 15th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. Thank you. Namaskar. तो वेंकैया नायडू होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति। और वैसे तो ये पहले से ही नतीजे सबको पता थे, क्योंकि जिस तरह से आंकड़ा का जो हिसाब था वो यही बैठता था कि वेंकैया नायडू को ये चुनाव जीतने में किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। और वही हुआ भी। अब फॉर्मल अनाउंसमेंट भी हो गई है, देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे वेंकैया नायडू। तो ये ऐलान अब कर दिया गया है। और 516 वोट जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स होते हैं, जो ये चुनावी प्रक्रिया पूरी होती है, हम आपको बता दें कि वोटिंग जो है आज सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी और 5 बजे तक का वक्त रखा गया था वोटिंग के लिए। और जो राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। और इन वोटों की जो गिनती का काम है वो 5 बजे के बाद शुरू हुआ और 7 बजे, जैसा कि माना जा रहा था, जो पहले से ही संभावित था कि 7 बजे नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा, अब वो ऐलान कर दिया गया है। फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दी गई है और देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे वेंकैया नायडू। आपको बता दें, वेंकैया नायडू का बहुत ही एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है। 1971 में छात्र नेता के रूप में उन्होंने राजनीतिक सफर की अपनी शुरुआत की थी और इस लंबे दौर में कई अहम पदों पर वो रहे हैं। और एक छात्र नेता के रूप में पहले उन्हें पहचान बनाई थी, उसके बाद जो युवा मोर्चा है बीजेपी का, उसके भी वो अध्यक्ष रहे। और ये जो लंबा सफर तय किया है, बहुत ही साधारण परिवार से, किसान के बेटे हैं वेंकैया नायडू, और वहां से उन्होंने ये लंबा सफर तय किया और अब वो देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। और आपको बता दें, सबसे पहले इस वक्त हम वेंकैया नायडू के घर पर, हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। हमारे कुछ और संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। रविंद्र कुमार के पास भी हम चलेंगे और विशाल पांडे भी होंगे गोपाल गांधी के घर से। लेकिन सबसे पहला सवाल रवि मेरा आपसे है, ये एक फॉर्मल अनाउंसमेंट का, ये हम कह सकते हैं कि महज एक औपचारिकता भर था, सबको पता था नतीजा क्या होने वाला है और वही हुआ भी। थोड़ा ये वोट हमें समझा दीजिए, ये कितने वोट मिले हैं?
516 वोट बताए जा रहे हैं, यही एक्सपेक्टेड थे क्योंकि जो एनडीए के जो दल हैं वो तो समर्थन कर ही रहे थे, लेकिन कुछ गैर एनडीए दल भी थे जिन्होंने समर्थन का ऐलान पहले से ही कर दिया था। जी बिल्कुल, देखिए आश्चर्यजनक बात है क्योंकि जेडीयू और बीजेडी के कम मतलब सहमति नहीं होने के बावजूद भी पिछले बार 520 वोट पड़े थे, इस बार 516 वोट पड़े हैं, यानी कि और वोटें बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी की वोट कम नहीं हुए, एनडीए के वोट बढ़े हैं और ये वेंकैया नायडू के लिए बड़ी जीत है क्योंकि माना जा रहा था कि उनके नाम पर भी क्रॉस द पार्टी उनको वोट पड़ेंगे। अपने नाम पर जो होता है उनका एक छवि है, क्योंकि राज्यसभा में भी लगातार चौथे टर्म में वेंकैया नायडू हैं। आपको घर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, हम लोगों ने तो लड्डू पहले खा लिया है क्योंकि यहाँ नमकीन और लड्डू की व्यवस्था पहले थी पत्रकारों के लिए, और तमाम जो लोग यहाँ आ रहे हैं घर पे देखिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं सारे लोग कि कब आए। और देखिए माला, ये माला दिखाना चाहेंगे, फूल माला सामने, ये देखिए फूल माला लेकर स्वागत के लिए तैयारी है। वेंकैया नायडू यहाँ थोड़ी देर में आएंगे, घर पे हैं, उनका स्वागत किया जाएगा और स्वागत के बाद यहाँ मंच है, मंच पे आकर वेंकैया नायडू बयान भी देंगे, भाषण भी देंगे कहा जा रहा है। हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा है, तो बीजेपी के प्रवक्ता, इनसे बात करेंगे। जीवीएल, कितना खुशी का क्षण है आपके लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि सारे पद जो संवैधानिक पद हैं उस पर आपका कब्जा आज से हो गया। देखिए, एक बहुत ही अच्छा पल है हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, बट लेकिन देश के लिए भी मैं मानता हूं आज बहुत अच्छा एक शुभ न्यूज है, बिकॉज वेंकैया नायडू जी जैसे बड़े एक हस्ती जिनका 25 साल से ज्यादा अनुभव रहा है पार्लियामेंटेरियन के नाते, एज अ पॉलिटिशियन उनका लगभग 40-45 साल का अनुभव है और एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं। अजात शत्रु के रूप में वेंकैया नायडू जी को देखते हैं। हमारे विरोधी दल भी वेंकैया नायडू जी की और उनकी जो नेतृत्व है उसको पसंद करते हैं। इसलिए मैं मानता हूं राज्यसभा में अगले 5 साल बहुत ही यादगार साबित होंगे देश के लिए, मैं ऐसा मानता हूं। तमाम तरह की तैयारियां होंगी, क्या क्या तैयारी है यहाँ? प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं और क्या तैयारी है यहाँ की घर पे? देखिए, आज घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री जी आएंगे, ऐसा संकेत है, बधाई देंगे, हमारे सभी बड़े नेता उनको बधाई देंगे, पार्टी के बड़े बड़े मंत्री, पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज और पार्टी के एमपीज, हम सब बधाई देंगे। सारे मीडिया मित्र, आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पल पल के खबर जनता तक पहुँचाने के लिए। मैं मानता हूँ ये देश के लिए और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही अच्छा पल है, क्योंकि सभी बड़े पदों पर प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति, तीनों पद ऐसे व्यक्ति अभी उनके सामने उनके पास होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं। और सबसे बड़ा विषय, ये तीनों व्यक्ति एक साधारण परिवार से आकर के एक अपने कर्म के वजह से, अपने निष्ठा के वजह से, अपने सक्सेसफुल काम करने के वजह से इस पद पर पहुंचे हैं। मैं मानता हूं युवा के लिए एक बहुत अच्छी संकेत है। बार बार कहा जाता है कि साउथ में इसका आपको फायदा होगा, कि दक्षिण की राजनीति में चूंकि लगातार जुड़े रहे कर्नाटक। रवि आपको रोक रहे हैं, गुलाम नबी आजाद साहब कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आपके पास लौट कर आ रही हूँ। कोई इनवैलिड हुआ या क्रॉस वोटिंग हुई, वो अपने पार्टियां वो उसके बारे में देखेंगे, लेकिन बात यह है कि पिछले बार इस बार हमें विपक्ष को मिले। And this is a political fight, as we always said. It's a fight between two political trends. Those who want to strengthen the constitutional order in our country. And that is why we put up Shri Gopal Krishna Gandhi. We are very grateful to him to have consented to be a candidate, of the United Opposition. We are extremely grateful to him, and I think this campaign was done in a very dignified manner. And so we'd like to put on record our thanks to Mr. Gopal Krishna Gandhi. तो विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी और उन्हीं का शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ पर सीताराम येचुरी, और एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं रवि त्रिपाठी वहां पर जीवीएल नरसिम्हा से बात कर रहे थे। आप पूछ रहे थे रवि कि दक्षिण की राजनीति में अब किस तरह से असर पड़ने वाला है, क्योंकि दक्षिण भारत के बहुत ही अहम चेहरे रहे हैं और जो इनका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है संसदीय कार्य मंत्री के रूप में, अब वो किस तरह से उनके लिए मददगार साबित होगा। आप आगे अपनी बात बढ़ा सकते हैं रवि। जी बिल्कुल मीमांसा, देखिए कल सुबह वेंकैया नायडू ने कहा कि रवि फिर मैं आपको रोक रही हूँ। गोपाल कृष्ण गांधी कुछ बोल रहे हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आपके पास लौट कर sections of India. Secondly, I would like to thank all the honorable members of Parliament for having voted for me. I refer to those who have voted for me, and I believe the number that has voted for me
is beyond the expectations of certain calculations. I thank all of them very deeply and sincerely. They represent different political persuasions. They come from different parts of India, and they had all come together to vote for what they thought was the national good, which is the affirmation of the right to free thought, to free speech, the right to hold a different opinion, and the duty to serve the cause of pluralism and secularism in India. I thank all of them. I also thank the political parties and the leaders who endorsed the inclination and the indications of the members of parliament for having nominated and supported me. And finally, I would like to say to all the honorable members of parliament, across the party divides, across the divide of this vote, I would like to say to all of them, honorable ladies and gentlemen, you carry a great responsibility and a great weight on your shoulders, and may you discharge your responsibilities in the tradition of the great parliamentarians of our country with diligence and courage. Above all, with the word of your conscience and the word of the Constitution guiding you. अंत में मैं एक और चीज़ कहकर आपसे विदा लेता हूँ, और वो ये है कि इस चुनाव में बहुत बड़ी दो विजय प्राप्त हुई हैं। सबसे पहली स्पष्ट विजय वेंकैया नायडू गारू की, जिनको बहुमत मिला है और जो अब हमारे अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे, और दूसरी विजय है हमारे देश की उस जागरूकता को, हमारी उस देश की उत्सुकता की, जिस उत्सुकता और जागरूकता से हमारे देश की स्वायत्त सोच, स्वतंत्र वाणी सुरक्षित रहती है. दिस इज़ अ विक्ट्री ऑफ द बैलेट, इट इज़ ऑल्सो अ विक्ट्री ऑफ फ्री स्पीच, and the second victory belongs to all the people of India. इससे ज़्यादा मुझे कोई कहने की आवश्यकता नहीं. Were you expecting the margin to be this big? I was expecting a handsome performance by the united vote of the opposition parties and those who had decided to vote in this manner, and I am more than satisfied with what I have got. Thank you. हमने अपनी तरफ तो जितने वोट मिले हैं गोपाल कृष्ण गांधी को, वो कह रहे हैं कि वो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मिले हैं, और उन्होंने बोला कि ये बैलेट की जीत है और फ्रीडम ऑफ स्पीच की जीत है. एक बार फिर से रवि, मैं आपको बार बार बीच में रोक रही थी, दरअसल रिएक्शंस हमें लगातार मिल रहे हैं, और बात ये हमारी हो रही थी कि बीजेपी का जो ये मिशन साउथ है और जिस तरह से वो पावर बैलेंस को, एक तरह से पावर इक्वेशंस को बैलेंस करने की कोशिश की गई. पहले जो रामनाथ कोविंद हैं उनका नाम रखा गया था आगे, और उसके बाद वो नॉर्थ से थे, और अब दक्षिण से वेंकैया नायडू. हालांकि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर कोई काबिज हो जाता है तो पार्टी लाइन से ऊपर उठ जाता है, पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है. लेकिन ये जो इक्वेशन है किस तरह से बीजेपी के लिए मददगार साबित होगी 2019 में? हमारे साथ अच्छी बात यह है कि जीवीएल साथ में, और जीवीएल भी साउथ से बिलोंग करते हैं, तो खुद ही बताएंगे कि जीवीएल ये सोच है कि वेंकैया नायडू को अगर साउथ से ले आकर आपने वाइस प्रेसिडेंट बनाया है तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक सोच है और इसका राजनीतिक फायदा आपको मिलेगा. क्या बीजेपी की जो साउथ ओरिएंटेड राजनीति है, क्योंकि नॉर्थ में तो आप मजबूत थे ही, नॉर्थ से आपने राष्ट्रपति भी दिया, उपराष्ट्रपति साउथ से देने का कुछ रणनीति, और इसका क्या फायदे आपको दिखते हैं आगे? ये कोई राजनीतिक फायदा के लिए किया है मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन एक देश के सबसे बड़े दल होने के नाते, एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमारे पार्टी ये भी विचार करती है कि हम भारत को पूरी तरह, हमारी पार्टी को हर स्थान में, पार्टी में, सरकार में और अलग अलग पदों पर सबको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. यही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. तो इसलिए एक दक्षिण भारत से प्रधान उपराष्ट्रपति को हम चुनते हैं. स्वाभाविक रूप से वहां पहले भी उपराष्ट्रपति दक्षिण से रहे हैं, लेकिन आपके उपराष्ट्रपति दक्षिण से होने के क्या मायने हैं? मैं देखिए एक सबसे पहले वेंकैया नायडू जी को आप केवल दक्षिण के नेता के रूप में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो पार्टी के भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बार रह चुके हैं। ऐसा समय जब हमारी सरकार थी, केंद्र में अटल जी प्रधानमंत्री थे, तब भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसलिए वेंकैया जी को केवल साउथ तक समेट कर रखना ठीक नहीं है। लेकिन पार्टी का विस्तार होने का फायदा होगा। लेकिन हम मानते हैं, हम राजनीति में हैं, सबको, जनता को, उनके हर वर्ग को, हर समाज को, हर प्रांत को ये एहसास दिलाना राजनीति का एक इम्पोर्टेंट एक पहलू है। हम ये नहीं कह सकते हमारे सारे सपोर्ट पूरे भारत से आएगा, बट लेकिन हम नेता की चयन किसी एक प्रांत से करेंगे, ऐसा होता नहीं है। तो राजनीति का एक पहलू है, मैं मानता हूं, इसमें कोई खराब नहीं लगता है। और दक्षिण के लोग और भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े ऊंचे पदों पर दक्षिण भारत के नेता आए हैं, ये इससे अच्छी मैसेज बिल्कुल जाएगी। चलिए, तो इससे अच्छा मैसेज जाएगा। आपको दिखाना चाहूंगा, एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, कई मंत्री भी आ चुके हैं जो उनके स्वागत के लिए फूल माला लेकर यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लाइन करके जो दत्तात्रेय हैं, लेबर मिनिस्टर हैं, जो वहीं के रहने वाले करके सब कहें तो फूल लेकर, माला लेकर आने वाले लोगों का सिलसिला शुरू हो गया है। थोड़ी देर में माना जा रहा है कि मीमांसा यहाँ पे पहुंचेंगे। शमशेर शरीफ जो कि राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ आकर एक तरह से कहा जाए उनको अपना जीतने का जो पत्र होता है वो देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, उनको देंगे। और उसके बाद वो यहाँ से जाएंगे तो प्रधानमंत्री के आने की संभावना है। हालांकि प्रधानमंत्री कहा जा रहा है कि मंच पे तो नहीं आएंगे प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री आएंगे घर में, उनसे मिलेंगे, उनको बधाई देंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री शायद यहाँ भी आ सकते हैं। हो सकता है वेंकैया नायडू उनसे बात करें और मंच पर लेके आए, चूंकि यहाँ काफी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। तो हर तरह की तैयारी है। हम चाहेंगे कि तमाम लोग दिखाना चाहेंगे कि सब कार्यकर्ताओं के चेहरे पे खुशी भी है, तमाम कार्यकर्ता हैं, सब तरह की तैयारी की गई है। पूरा इलाका आपको दिखाना चाहेंगे, हर तरह से लोग यहाँ तैयार हैं। हर तरह से एक तरह कहा जाए मिठाई पहले, मैंने कहा बार बार कि लड्डू पहले ही यहाँ बांट दिया गया था। तमाम मंत्री, जितेंद्र सिंह को दिखाना चाहेंगे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यहाँ पहुंच चुके हैं। सब एक एक करके यहाँ पहुंच रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है। इस जीत को के मायने अगर आप लगाएं तो कहा जा रहा है कि लुटियन जोन्स में बीजेपी का एक तरह से कब्जा हो गया है। और लुटियन जोन्स खास तौर पे इस इलाके में अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम पद जो है बीजेपी के पास है। और ये रवि, और देखिए ये ट्वीट भी आ गया है प्रधानमंत्री मोदी का। मुझे यकीन है कि राष्ट्र निर्माण में वेंकैया नायडू पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। और वहां पर वैसे इंतजार भी किया जा रहा है, हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंचे मुबारकबाद देने के लिए वेंकैया नायडू को। जैसे कि हमने रामनाथ कोविंद जब उन्होंने राष्ट्रपति जब वो बने थे तब भी प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे थे और वहां पर इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अभी तक पुख्ता खबर नहीं है कि वो वहां पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि तैयारियां वहां पर बड़े स्तर पर की जा रही हैं और लड्डू तो बांटे ही जा रहे हैं और फूल के गुलदस्ते वहां पर तैयार हैं। और इस वक्त हम रुक कर लेते हैं, रविंद्र कुमार भी विजय चौक से इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, जाहिर तौर पर एक और ये बड़ी खुशी का मौका, पहले रामनाथ कोविंद जिनका ताल्लुक बीजेपी से रहा, वो इतने अहम पोस्ट पर गए, तो जो 3 अहम पोस्ट कहें इस वक्त इस देश की, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद, सब वो लोग काबिज हैं जिनका ताल्लुक बीजेपी और संघ परिवार से रहा है। ये बहुत बड़ा मौका है ये बीजेपी के लिए। जाहिर तौर पर मीमांसा, चारों संवैधानिक पोस्ट अगर देखा जाए, स्पीकर को अगर उसमें जोड़ लिया जाए वो भी संवैधानिक पोस्ट है और प्रोटोकॉल के अंतर्गत भी 6वें 7वें नंबर पर आता है। तो कहीं ना कहीं 4 जो बड़े पद हैं उस पर बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता आसीन हो चुके हैं। वेंकैया नायडू को सर्टिफिकेट थोड़ी देर में शमशेर के शरीफ देंगे और ये एक तरह से तय हो गया कि चारों सीट बीजेपी और संघ के लोगों कार्यकर्ताओं के उस पर पद पर आसीन हुए। तो कहीं ना कहीं जो संघ 1925 से हेडगेवार ने जो मिशन शुरू किया था, दीनदयाल उपाध्याय ने जो जागृति लाई थी और अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी ने जिसे आगे बढ़ाया था, नरेंद्र मोदी की सरकार और उनकी पार्टी, उनके समय की पार्टी ने एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया है जहां पर संवैधानिक सभी पोस्ट बीजेपी के अंतर्गत है। जहां तक प्रधानमंत्री की बात है तो मीमांसा में जरूर बताना चाहूंगा कि सुबह सबसे पहला वोट अगर कोई दिया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और शमशेर के शरीफ जब सर्टिफिकेट देंगे तो सबसे पहले जो बधाई देंगे वो प्रधानमंत्री। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही सर्टिफिकेट वेंकैया नायडू को दिया जाएगा उसके चंद मिनटों बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य, एनडीए के सभी तमाम बड़े नेता वेंकैया नायडू को बधाई देने के लिए उनके घर पर जाएंगे।
जी, आप रहिए हमारे साथ। तो तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखाई रहे हैं कि वहां पर ये तैयारियां चल रही हैं और वेंकैया नायडू का वहां सम्मान भी किया जा रहा है। फूल के गुलदस्ते लेकर लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर मिठाइयां भी बंट रही हैं। और यही तस्वीरें कुछ दिन पहले हमने देखी थी जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे, जब वो घोषणा हुई थी, कुछ ऐसी ही तस्वीरें थी। और लग रहा है आज ये एक तरह से रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। और इस वक्त हम गोपाल कृष्ण गांधी जो कि विपक्ष के उम्मीदवार थे, उनके घर से इस वक्त हमारे तीसरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, विशाल पांडे। विशाल, ये जो तस्वीरें हैं ये काफी अंतर दिखाई देता है। देखिए, रामनाथ कोविंद जब उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया, ये जो खुशी की लहर है बीजेपी खेमे में तब भी देखी गई थी और आज भी वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और वहां पर फूलों के गुलदस्ते लेकर पहुंच रहे हैं। देखिए, पटाखे भी फूटने शुरू हो गए हैं, मिठाइयां भी बंट रही हैं। और वहीं जो विपक्ष की ओर से जो उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं, हालांकि नतीजे उनको पहले से पता है। ये देखिए, चलिए जाएंगे विशाल के पास, लेकिन तस्वीरें देखिए, ये जाहिर हो रही है खुशी बीजेपी खेमे की, क्योंकि 4 जो महत्वपूर्ण पद हैं इस वक्त देश के, उन पर काबिज हो चुकी है बीजेपी। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? चलिए देखिए, ये विक्ट्री साइन वहां पर बनाया जा रहा है। विशाल, ये तस्वीरें पता नहीं आप देख पा रहे हैं नहीं कि विक्ट्री साइन दिखाया जा रहा है और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पार्टी का विस्तार जिस तरीके से हो रहा है और अहम पदों पर बीजेपी काबिज हो रही है, विपक्ष में वो डर, वो कहें, और वो जानते थे कि नतीजा क्या होने वाला है, लेकिन जब ये सामने होते हुए देखते हो कि पार्टी का विस्तार होता जा रहा है और वो पार्टी जो है वो संकुचित होती जा रही है, जिसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता था, वहां से आपको कैसे रिएक्शन मिल रहे हैं? देखिए मीमांसा, कांग्रेस के लिए बेहद चिंताजनक बात है, क्योंकि धीरे धीरे कांग्रेस का ग्राफ जो है वो नीचे होता जा रहा है, राज्यों से बाहर होती जा रही है। और जिस बड़े पदों पर कांग्रेस के बैकग्राउंड के नेता बैठे हुए थे, अब वो भी हटना शुरू हो गए। अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर संघ के बैकग्राउंड के लोग हैं। एक बार सबसे पहले मैं आपको गोपाल कृष्ण गांधी के घर की तस्वीर दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस कदर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वेंकैया नायडू के यहाँ किस तरह से खुशी मनाई जा रही है, पटाखे जलाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ इनका दरवाजा बंद है, कोई यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। कुछ मीडिया के लोग जरूर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन गोपाल कृष्ण गांधी के घर के तस्वीर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर किसी को अपने नतीजे मालूम थे कांग्रेस को कि क्या आने वाले हैं। विपक्षी दल, भले 18 दलों का समर्थन गोपाल कृष्ण गांधी के साथ था, लेकिन उन्हें ये पता था कि हार इसमें निश्चित है। लेकिन जिस तरह से बार बार वो कह रहे हैं कि वैचारिक लड़ाई थी, उसी लड़ाई को लड़ने के लिए गोपाल कृष्ण गांधी को मोहरा बनाया गया। और फिलहाल गोपाल कृष्ण गांधी अपने घर में मौजूद नहीं है और यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और कांग्रेस के लिए ये एक, लेकिन दूसरी जो है वो तस्वीर दिखानी इस वक्त बहुत जरूरी हो जाती है दर्शकों को। और ये देखिए, ये पहले ये वोटिंग की तस्वीर थी, जो ये 10 बजे से सुबह वोटिंग शुरू हुई थी और वेंकैया नायडू वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। और आप देखिए, अब ये फॉर्मल अनाउंसमेंट अब हो चुकी है, देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे वेंकैया नायडू, और किस तरह से उनको सम्मानित वहां पर किया जा रहा है। पार्टी से जुड़े जो बड़े बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर बाद वहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचने वाले हैं। अब एक फॉर्मल एक प्रक्रिया होती है कि जो राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो जाते हैं और जीत का सर्टिफिकेट दिया जाता है जो विनिंग कैंडिडेट होता है उसको। तो वहां पर ये सेक्रेटरी जनरल कुछ ही देर में पहुंचेंगे। उससे पहले वहां पर पार्टी नेताओं का तांता लगा हुआ है, मुबारकबाद दी जा रही है वहां पर वेंकैया नायडू को। और हमने दिखाया आपको, वहां पर पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मौका है ये, बीजेपी की जो जीत हो रही है एक के बाद एक। अब देखिए, 13 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, साथ ही साथ कुल मिलाकर हम गिन लें तो 18 राज्य हैं जहां पर एनडीए की सरकार चल रही है, सहयोगी दलों के सहयोग से ये सरकारें चल रही हैं। तो जो पार्टी का जो विस्तार हो रहा है उसको लेकर इस वक्त विपक्ष में बहुत ज्यादा घबराहट नजर आ रही है। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ है। रवि, ये पटाखे की जो आवाजें हैं जो वहां पर चल रहे हैं वो हम तक पहुंच रही है और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 18 राज्यों में एनडीए की सरकार है। अब जो नीतीश कुमार, जो पहले जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल चेहरे माने जाते थे विपक्ष के, वो भी टूटकर अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। और हमने देखा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के वोटिंग में ऐसे बहुत से गैर एनडीए दल रहे, एआईएडीएमके, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, उन्होंने भी वेंकैया नायडू का समर्थन किया। ये कितनी बड़ी चिंता की बात कांग्रेस के लिए?
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, कांग्रेस बार बार ये कहती है विपक्षी एकता को बनाए रखने के नाम पर वो तमाम लोगों से तमाम समझौते करती है और तमाम तरह के एक तरह से समझौते पर विश्वास करती है। लेकिन अगर एक एक करके, चाहे तो जेडीयू टूट रहा है, आप देखें तो एक एक करके उनके गठबंधन, पहले इंडियन नेशनल लोक दल जो यहाँ का है हरियाणा का, उसने भी उनका साथ छोड़ा, तो धीरे धीरे करके वो गठबंधन जो विपक्षी एकता का गठबंधन है वो कमजोर होता जा रहा है और एक एक करके नरेंद्र मोदी का जो गठबंधन है और एनडीए का गठबंधन है वो मजबूत होता जा रहा है। जेडीयू के आने की बात आ गई, आपको ध्यान में आ रहा है कि अगर बात करें एआईडीएमके के, तो एआईडीएमके का दोनों घड़ा मर्जर करेगा और वो एनडीए में शामिल होगा, सरकार में शामिल हो सकता है, इसकी खबरें आ रही है। तो 3 साल बाद अमूमन ये होता है कि किसी भी सरकार के खिलाफ माहौल बनता है, एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव माहौल बनता जा रहा है, नरेंद्र मोदी के पक्ष का माहौल बनता जा रहा है पूरे देश में। अगर राज्यसभा की बात करें तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो चुकी है और राज्यसभा में बहुमत से महज 2 कदम दूर है। अगर क्षेत्रीय पार्टी जो समर्थन कर रहे हैं आमतौर पर तमाम मुद्दों पर, उनको अगर गिनती करते हैं तो 123 में बहुमत होगा, 121 के आसपास सीटें पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक छत्र राज की तरफ मोदी बढ़ रहे हैं और यही कहीं ना कहीं विपक्ष की चिंता है कि वहां लीडरशिप का क्राइसिस है, वहां डिसीजन का क्राइसिस है, तमाम तरह की क्राइसिस है, लेकिन यहाँ न तो डिसीजन का क्राइसिस है, न लीडरशिप की क्राइसिस है और विजन है, डेवलपमेंट का विजन और साथ साथ करप्शन, जो करप्शन में फंसे हुए लोग हैं उनको लगातार एक्सपोज करते रहना है ताकि देश की जनता को ये पता चले कि एक तरफ करप्ट लोग हैं और दूसरी तरफ ईमानदार छवि के नरेंद्र मोदी हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, अभी भी तमाम नेता आके यहाँ बैठ चुके हैं, वो तस्वीर है, एक एक करके साउथ के भी लोग यहाँ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, सब एक कर सब नेताओं ने अपनी जगह ले लिए, सब आके बैठ गए क्योंकि लग रहा है थोड़ी ही देर बाद यहाँ वेंकैया नायडू आएंगे, क्योंकि जब तक उनको आकर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, हो सकता है सर्टिफिकेट पहले मिले, फिर उससे उनसे आके प्रधानमंत्री मिले और उसके बाद शायद वेंकैया नायडू आएंगे। शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन फिलहाल तक का प्लान यही है। सब में खुशी का बात है। देखिए, संबित पात्रा ने भी कहा कि ये हमारे लिए होली और दिवाली जैसा माहौल है आज का दिन, क्योंकि बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है और एक किसान की जीत है, गरीब की जीत है, क्योंकि किसान और गरीब परिवार से लोगों को सत्ता के शीर्ष शिखर पर पहुंचाया है बीजेपी ने, तो ये बड़ी जीत है बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल, और हमें रिएक्शंस भी मिल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का तो ट्वीट हम दिखा ही चुके हैं अपने दर्शकों को। जितेंद्र सिंह भी इस जीत पर कुछ बोले हैं, आइए सुन लेते हैं क्या कहा है उन्होंने इस जीत पर, इस बड़ी जीत पर। मैं समझता हूं कि जितनी बड़ी जीत हुई है ये उनके व्यक्तित्व के अनुकूल है। वेंकैया जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि क्रॉस दी पार्टी लाइन, कोई भी दल हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी देश का क्षेत्र हो, हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में वो लोकप्रिय है। और मैं आपको आज एक बात विश्वास के साथ कहता हूं कि वो लोग भी जो शायद अपनी राजनीतिक दलों की मजबूरी के कारण वेंकैया जी के खिलाफ मतदान किए हों, दिली में चाहते होंगे कि वेंकैया जी के हक में हम वोट